Welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JEE Mains of the topic chemical bonding. Okay. So our first question is MCQ single correct answer. 2 pi and half sigma bonds are present in। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड और एक सॉरी दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें टू पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है? कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑप्शन नंबर ए O2 है, ऑप्शन नंबर बी N2 प्लस है, ऑप्शन नंबर सी O2 प्लस है, ऑप्शन नंबर डी N2 है। कौन सा मॉलिक्यूल है यही हमें बताना है क्वेश्चन में। As we know that in O2 molecule there is one sigma and one pi bond are present. Okay, and in case of N2 plus, there is 2 pi and half sigma bond is present. Okay, because in N2 plus, because we know that N2 plus have bond order 2.5, so we can say that N2 molecule N2 plus molecule have the bond order 2.5, due to which it has 2 pi and half sigma bond. Okay, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। 2 pi and half sigma bond are present in molecule with bond order 2.5. Molecular orbital configuration of N2 plus have 13 electrons। ठीक है, molecular orbital configuration of N2 plus have 13 electrons, जिसमें कि 9 क्या होते हैं हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग। देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 क्या हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एज वी नो दैट बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस number of electron in anti bonding orbital divided by 2. Okay, so our answer will be 2.5। जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी 2.5 आएगा। 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। So we can say that the N2 plus molecule have bond order 2.5, due to which it has 2 pi and half sigma bond. Okay, so our right answer will be option number B, N2 plus have 2 pi and half sigma bond, because it has bond order 2.5. Okay, there is 9 electron in bonding orbital minus number of electron in bonding 4 divided by 2, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 2.5। so we can say that 2 pi and half sigma bond are present in N2 plus molecule. Okay, our next question is the covalent alkaline earth metal halide क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कोवैलेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइलाइड फॉर्म करेगा? एज वी नो दैट कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है पोलराइजिंग पावर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमारा पोलराइजिंग पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
charge on cation and inversely proportional to size. Okay, so we can say that the beryllium molecule have smallest size and it has charge +2 +2 चार्ज होगा इसके पास और सबसे छोटी साइज होगी, जिसके कारण इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, Px2 मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फदान्स रूल, when the size of cation is less than the covalent character would be more for the cation. According to Fadans rule, when size of cation is less, Fadans rule हमारे क्या होता है, the lower the size of cation and the larger the size of anions, and the it is also directly proportional to charge on cations and charge on anions. When the size of cation is less, then the covalent character would be more. ठीक है, since beryllium +2 has minimum size among given cation, therefore Bx2 would be most covalent among given alkaline with metal halide. Okay, बेरिलियम मॉलिक्यूल की साइज सबसे छोटी होगी, जिसके कारण उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और जिसके कारण पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो हमारा क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, Bex2 हैज हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। ओके, we should proceed to our next question. Among the following, the molecule expected to be stabilized by anion formation is C2O2NO F2। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, among the following molecule expected to be stabilized by anion formation is। ओके, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एनायन बनाने के बाद क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कौन सा मॉलिक्यूल है, C2 की, NO की, O2 की, F2 की, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एज वी नो दैट द मॉलिक्यूल विथ 14 इलेक्ट्रॉन, जिस मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और 14 के अगर ऊपर जाएंगे, 14 के ऊपर 15, 16, 17, तो 0.5 उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है। ठीक है, 15 के लिए, 16 के लिए, ठीक है, यही होता है। ठीक, और देखिए अगर ऊपर भी जाएंगे तो 13 फिर 12, तो बॉन्ड ऑर्डर उसकी घटती है, 0.5 फिर 2। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, एक ट्रिक है। तो C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, C2 में बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, NO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, 7, 15, 15 हैं, तो 15 हैं, NO में 15 हैं, तो 15 है मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। और O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, 16 मतलब 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर। और F2 में कितने हैं, F2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो इसमें कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 कहने का मतलब कितने हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इसका अब एनायंस बनाना है, एनायंस C2 का जब बनाएंगे, C2 का तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जब C2 का एनायंस बनाएंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 + 1 13। ठीक है,
एरा का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और NO का कितने थे, 15 थे, 15 एक 16, 16 हो गए। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर तो O2 में 16 थे, एक जोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन एनहांस बनाया, 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। और देखिए F2 के पास कितने थे, 18 थे, 18 प्लस एक 19, कितना हो जाएगा 0.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, कितना 2.5, ठीक है। एज वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जो हमारा स्टेबिलिटी होता है मॉलिक्यूल का किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर के। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो वी कैन से दैट द C2 मॉलिक्यूल्स, जो C2 मॉलिक्यूल्स होता है उसके एनहांस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। मतलब जो C2 होगा उसका एनहांस जो फॉर्मेशन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। C2 हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 इज इतना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम जब निकालेंगे C2 का कितना आएगा, 2 आएगा। C2 है, C2 माइनस है 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे C2 माइनस में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा, जिसमें कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। तो as we know, higher the bond order, more will be the stability of molecule. So we can say that stability of C2 increases when it form C2 minus ion. Okay, जो हमारा C2 है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जब वह एनहांस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, so our right answer will be option number A, C2 molecule. ओके, C2 मॉलिक्यूल का एनायंस मोर स्टेबल होगा। ओके, MCQ सिंगल करेक्ट आंसर, ये हमारा MCQ सिंगल करेक्ट आंसर है। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन दी सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट रेस्पेक्टिवली, इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, स्टेट ऑफ बेरिलियम, जो बेरिलियम क्लोराइड इन एक बार सॉलिड स्टेट में है, एक बार वेपर स्टेट में है, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। एज वी नो दैट जो बेरिलियम क्लोराइड होता है वह सॉलिड स्टेट में, बेरिलियम क्लोराइड जो होता है BeCl2, वो सॉलिड स्टेट में क्या, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, चैन स्ट्रक्चर, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और वेपर फेस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, डायमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। BeCl2 इन वेपर फेज एग्जिस्ट एज डाइमर, जो BeCl2 वेपर फेज में डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस फॉर्म below 1200 Kelvin temperature. BeCl2 in solid state has chain. BeCl2 सॉलिड स्टेट में कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, चैन स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। जो हमारा बेरिलियम मॉलिक्यूल होगा, बेरिलियम क्लोराइड, वह सॉलिड स्टेट में चैन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और वेपर फेज में डायमेरिक स्ट्रक्चर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू थर्ड आर, पहला क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर एक, पहला क्या बोला है स्टेटमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिबिटेड बाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन
मेटल होता है वह कलर क्यों शो करता है, वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट सेकेंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तीसरा स्टेटमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक एंड स्ट्रांग। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू मी, एज वी नो दैट जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों क्यों कलर शो करता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बीबीटी है, वह ट्रांजिशन मेटल क्यों कलर शो करता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एज वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ये जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है सही है। स्टेटमेंट सेकेंड हमारा क्या है, रॉन्ग है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रेडिक्ट द क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नहीं, जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब स्टेटमेंट थ्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक एंड स्ट्रांग वंस। नहीं, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह यह भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है कि जो लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग है। ठीक है, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह क्या होगा, राइट आंसर होगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार और देखते हैं। BBT does not explain color exhibited by complex of transition metal because splitting of d orbital in explained by CFT। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कलर एग्जिबिशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज इस जो हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वह एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था, कलर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स को हमारा CFT एक्सप्लेन किया था बिकॉज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन explained by CFT। Second, BBT does not distinguish between strong and weak field complex। Okay. Third, PBT does not give quantitative and interpretation of magnetic properties। Okay, ये भी सही है। देखिए, जो हमारा PBT है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि मॉलिक्यूल वीक पास वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, और यह भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इट डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। HF has highest boiling point among hydrogen halide because it has HF has highest boiling point among hydrogen halide because it has option number A lowest dissociation enthalpy, option number B strongest hydrogen bonding, option number C lowest lowest ionic character, option number D स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवॉल इंट्रैक्शन। किसके कारण HF मॉलिक्यूल हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है अमंग द हाइड्रोजन हाइलाइट। देखिए, जो HF मॉलिक्यूल होगा हमारा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा, जो हमारा फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हमारा हाइड्रोजन एटम किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन
एटम हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बिटवीन एच एफ मॉलिक्यूल, एच एफ हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एमंग दी हाइड्रोजन हाइलाइट। जो ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एच एफ मॉलिक्यूल, एच एफ हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो एच एफ मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन एटम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मोर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसके कारण वह स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा एच एफ, जिसके कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Our next question is, during the change of O2 to O2 minus, the incoming electron goes to the orbital। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हमारा O2 टू O2 माइनस में चेंज हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में जाएगा, वही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 हैज़ 16 इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, उसके पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 1 सिग्मा NH2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz सिग्मा 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2 पाई 2px1 एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। देखिए 14 हो गए, अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें गया फिर एक इसमें गया। ठीक है, देखिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, ऐसे होता है। इसमें एक गया फिर इसमें एक गया, तो इसके पास दो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुए, O2 मॉलिक्यूल के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। O2 मॉलिक्यूल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 2 माइनस। और O2 2 माइनस के केस में जो क्या होगा, देखिए पहले बार 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 4, फिर 2 6, फिर 2 8, फिर 2 10। ठीक है, फिर इसमें एक फिल किए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, 14 हो गए। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3। एक इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 70 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किस मॉलिक्यूल में जाएगा, पाई 2px2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम O2 to O2 माइनस पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में जाएगा। ठीक है, our next question is, the relative strength of interionic intermolecular forces in decreasing order is। ऑप्शन नंबर ए, डाइपोल डाइपोल,
आयन डाइपोल, आयन आयन डाइपोल। ऑप्शन नंबर बी आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन आयन। ऑप्शन नंबर सी आयन डाइपोल, आयन आयन, डाइपोल डाइपोल। ऑप्शन नंबर डी आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल आयन, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इंटर आयनिक इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वंडर वाल इंटरेक्शन। जो हमारा आयनिक इंटरेक्शन होता है वह वंडर वॉल इंटरेक्शन से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो आयन्स के बीच हमारा इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू आयन आयन, डाइपोल डाइपोल एंड आयन डाइपोल। देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किस में होगा? आयन आयन के बीच में, फिर उसके बाद आयन डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल के बीच। ठीक है, so we can say that ion molecule have the highest interaction, then ion dipole, then dipole dipole interaction. Okay, so our right answer will be option number D, ion ion, फिर उसके बाद ion dipole, फिर उसके बाद dipole dipole interaction. Okay, our next question is dipole of CF4, CHCl3 and CH4 are in the order. As we know that CCl4 क्या हमारा एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, और चारों क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लिया। ठीक है, तो यह है क्या है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल अपने सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बॉन्डिंग बना ले, बॉन्ड। ठीक है, वह कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो CCl4 हमारा क्या है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। ओके, CH4 भी हमारा क्या है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जो है कार्बन जो है हमारा 4 बॉन्डिंग बना ले रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, CH4 भी हमारा क्या है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। ओके, और जो हमारा क्या है CHCl3 है, ये तो 4 बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन क्या है एक मॉलिक्यूल, देखिए एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन के साथ बना रहा है। तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच कार्बन कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बनाए वह सेम सेम काइंड ऑफ एटम के साथ बॉन्डिंग बनाए। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, मतलब मेनी हो जा रहे हैं एटम, जिसके कारण ये क्या होगा? ये कोवैलेंट तो होगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये पोलर मॉलिक्यूल होगा हमारा CHCl3, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, जो हमारा CHCl3 होगा इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। और CH4 और CCl4 जो है दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वह क्या होता है? सॉरी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। एक बार और सुन लीजिए, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। पोलर का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो और नॉन पोलर का 0 होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द आवर राइट आंसर। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। CHCl3 इज पोलर वाइल CH4 एंड CCl4 आर नॉन पोलर, सो डाइपोल मोमेंट ऑर्डर इज दिस।
जो हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। CH4 और CCl4 का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, जीरो डायपोल सॉरी जो CH4 और CCl4 का डायपोल मोमेंट होगा सेम होगा, जीरो होगा, और CHCl3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। So our right answer will be option number B is our right answer. Okay. Our next question is chlorine react with hot and concentrated NOH produces compound X and Y. Compound X give white precipitate. With silver nitrate, the average bond order between chlorine और and ऑक्सीजन एटम इन Y। देखिए जो क्लोरीन है हमारा किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड NOH के साथ, ठीक है। प्रोड्यूस कर रहा है कौन कौन से कंपाउंड, X एंड Y। जो हमारा X है प्रोड्यूस कर रहा है वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच इन Y मॉलिक्यूल। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो हमारा क्लोरीन है Cl2, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल है, किससे रिएक्ट कर रहा था, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NOH के साथ, ठीक है। तो जब ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड NOH के साथ क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट देगा, NaCl बनेगा 5 मॉलिक्यूल और NaClO3 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया था, जो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो हमारा कंपाउंड X है, NaCl हमारा क्या है, X है और NaClO3 Y है। जो NaCl है सिल्वर नाइट्रेट के साथ कितना क्या दे रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है, प्लस NaNO3। तो हमारा NaCl क्या हो जाएगा, X हो जाएगा और Y क्या हो जाएगा, NaClO3, ठीक है। हियर इन एनायन ClO3 माइनस क्या था, NaClO3 ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और ClO3 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। ओके, NaClO3 ब्रेक इनटू Na प्लस एंड ClO3 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, Cl बॉन्डेड O, एक O यहाँ साइड में और फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन बच रहा है, ठीक है। उसके पास उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, कितने बॉन्डिंग बना लिया, 2 2 4 1 5 बॉन्डिंग हो गया, एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 1 2 3 4 5 और निगेटिव चार्ज 6, ठीक है। और 6, तो इसके पास एक क्या बचा, लोन पेयर भी बचा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 5 हो गए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। जो हमारा क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल, ClO3 माइनस उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, 5/3 टोटल बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड 1.67, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CN माइनस, बॉन्ड ऑर्डर CN माइनस का क्या है होगा, इसे हमें फाइंड आउट करना है। मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। और 14 के ऊपर जाएंगे 15 और 16 तो 0.5 जो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अब भी जाएंगे तो 0.5 डिक्रीज करेगा, जैसे 13 का 2.5, 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम
Cn- है, कार्बन के पास Cn- है, तो कार्बन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं और नाइट्रोजन के पास 7 हैं। तो 7 6 13 हो जाएंगे और एक माइनस। माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो 7 6 13 एक 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 14। देख लीजिए, जब किसी की मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर होंगे और बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। Cn- हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cn- इज इतना। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा निकल कर आएगा ये आएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं और एंटी बॉन्डिंग 4 हैं। देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। देयर इज़ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्स होंगे। सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, द मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक विथ बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, so we can say that our right answer will be option number C is the our right answer. Okay, MCQ सिंगल करेक्ट आंसर है ये भी हमारा। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू दियर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दियर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, एज वी नो दैट बॉन्ड लेंथ कैसे हमारा, बॉन्ड लेंथ जो होता है हमारा वो साइज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो साइज आयोडीन की सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। और फिर इसको आप ब्रोमीन की उससे छोटी क्लोरीन की, सबसे छोटी फ्लोरीन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर सॉरी जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, CI को होगा, सबसे कम CF को होगा। क्यों होगा, जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी की ऑर्डर क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड लेंथ होता है हमारा बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, देखिए जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी कम एनर्जी लगेगी उसको क्या, ब्रेक करने में। और जितना जितना छोटा बॉन्ड और लेंथ होगा उतनी उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने में। ओके, सो द ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी विल बी दिस। ओके, so we can say that our right answer will be option number D is our right answer. Okay. The magnetic moment of dioxygen species is 1.73. Magnetic moment is maybe. ठीक है, ऐसा ऐसे कौन कौन से डाई ऑक्सीजन स्पीसीज होंगे जिनका बॉन्ड मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73 होगा। ठीक है, देखिए जब 1.73 हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, √n n+2। ठीक है, जब हमारी n की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1.73, n की वैल्यू हमारी 1 होगी तभी √3 आएगा। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही हमें इसको
As we know that the O2 molecule has 16 इलेक्ट्रॉन। O2 मॉलिक्यूल के पास कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हमारे O2 मॉलिक्यूल के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा? बी रिजेक्ट हो जाएगा, सी रिजेक्ट हो जाएगा, डी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक तो है लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं है, सॉरी डायमैग्नेटिक नहीं है। 16 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये डायमैग्नेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 मॉलिक्यूल के पास। ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अकॉर्डिंग टू मी। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। O2 है 16 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 इज, देखिए जब इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे O2 मॉलिक्यूल का, जो हमारा टू 2p और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में फील्ड होंगे। ठीक है, मतलब एक कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? O2 मॉलिक्यूल के पास। ओके, जिसके कारण O2 मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक with 2 unpaired electron. Okay, O2 2 plus has 15 electron. The molecular orbital configuration of O2 plus is, O2 प्लस के पास देखिए इसमें कितने, O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड होगा। ठीक है, 2px एंटी बॉन्डिंग, 2py एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। हियर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। O2 माइनस हैज 17 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस के बाद 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस मॉलिक्यूल में भी कितने? एक इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा जो O2 माइनस O2 प्लस होगा, दोनों के पास क्या होंगे? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द O2 माइनस एंड O2 प्लस मॉलिक्यूल। ओके, so we can say that O2 minus and O2 plus have magnetic moment 1.73 because it has one unpaired electron. Okay, according to the molecular orbital theory. Okay, MOT के अनुसार। Our next question is that the number of sp2 hybrid orbits in a मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जो ईच कार्बन एटम किस में होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो हमारे बेंजीन के पास कितने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं? 3 हैं, 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 हैं। तो 6 त्रिक 18 orbit in the molecule of benzene. Okay, so our right answer will be option number D. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। ईच एंड एवरी एटम जो होते हैं इसमें होते हैं, ईच एंड एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फाउंड बाय ईच कार्बन एटम। 3 sp2 हाइब्रिडाइज एटम फॉर्म होते हैं ईच कार्बन एटम के द्वारा। तो टोटल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने होंगे? 6 एटम हैं, 6 कार्बन, तो कितने हो जाएंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो 6 त्रिक 18 हो जाएंगे। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड सॉरी 18 टोटल 18 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन ऑर्बिट इन total number of sp2 hybridized in the benzene is 18. Okay,
So we can proceed to our next question. The sum of the total number of bonds between chromium and oxygen atom in chromate and dichromate. हमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड की संख्या को क्या करना है, ऐड करना है. द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन. ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं. क्रोमेट का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ये होगा CrO4-2. ओके, और डाइक्रोमेट का Cr2O7-2-. ओके, तो कितने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग बना रहा है क्रोमियम, क्रोमेट में, क्रोमेट मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड बना रहा है. कितने, 4 सिग्मा और 2 पाई, मतलब टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है. और इन केस ऑफ डाइक्रोमेट Cr2O7-2- की में मॉलिक्यूल में कितने टोटल सी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना रहा है, 12. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन in the molecule Cr2O7 is 12. Okay, note here we consider only sigma bonds, so the answer would be 12, but there are 6 pi bonds also. If we consider them, then the total number of Cr bond will be 18. टोटल इसमें कितने हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, तो 12 कितने बॉन्ड बनाएगा, 12 बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, 18. Our next question is, if ABF4 molecule is a polar molecule, a possible geometry of ABF4 is. देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ABF4 मॉलिक्यूल का पॉसिबल ज्योमेट्री क्या क्या हो सकता है. ओके, ऑप्शन नंबर ए टेट्राहेड्रल, बी सीसॉ, सी स्क्वायर पिरामिडल, डी स्क्वायर प्लेनर. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. ए बी एफ फोर टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर शेप टेट्राहेड्रल विथ जीरो लोन पेयर इज नॉन पोलर. ABF4 ट्रायंगुलर पिरामिडल क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी. मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप सीसॉ होगी विथ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पोलर मॉलिक्यूल. ठीक, विथ पोलर मॉलिक्यूल. और ABF4 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर, ऑक्टाहेड्रल बोले या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री. ठीक है, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा विथ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. और मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा. ठीक है, नोट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज दैट in electronic geometry we include lone pair, but in molecular geometry we do not include lone pair. Here in this question it is not clear which geometry they are talking about. The correct answer would be either triangular, pyramidal और seesaw. ठीक है, जो हमारा
क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है, वह लोन पेयर को भी कंसीडर करता है, बट हमारी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, मॉलिक्यूलर शेप, वह लोन पेयर को कंसीडर नहीं करती है। और इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया गया है, इट इज़ नॉट क्लियर विच ज्योमेट्री दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इसमें बाई पिरामिडल भी हो सकता है और सीसा भी हो सकता है। ओके, जो हमारा AbF4 टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के केस में विथ जीरो लोन पेयर मॉलिक्यूल जो होगा हमारा नॉन पोलर होगा, और AbF4 इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल with molecular geometry or molecular shapes square planar have two lone pair electron, the molecule will be non-polar। तो हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल होगा AbF4 जो कि पोलर होगा, या तो वह इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सीसॉ शो करेगा, वही मॉलिक्यूल होगा। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो बी होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस इंडिपेंडेंस ऑफ दियर इंटरेक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। देखिए, पहला हमारा आयोन आयोन इंटरेक्शन है, दूसरा डाइपोल डाइपोल, तीसरा लैंडोन डिस्पर्सन। तो हमें इसमें रिलेशन बताना है विथ द रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है, और इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बीच। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जो हमारा आयोन आयोन इंट्रैक्शन एनर्जी होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा आयोन आयोन इंट्रैक्शन एनर्जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, पोजीशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है हमारा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एनर्जी, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो हमारा डाइपोल इंट्रैक्शन एनर्जी होता है, और लैंडोन डिस्पर्सन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, ठीक है। जो हमारा लैंडोन डिस्पर्सन होगा वह पोजीशन के इन्वर्स के पावर 6 होगा। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर। ओके, जो हमारी डाइपोल इंट्रैक्शन होगी वह रेडियस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी पोजीशन के, और डाइपोल डाइपोल उसके क्यूब के इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और हमारी जो लैंडोन होगी उसके r⁶ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर। ओके, थैंक यू टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।